آپ نے زور لگایا. یہ ساری یہ بات ہے یہ بڑی واضح چلیں جی، طریقے دو سے ہوگا جی. ہر اینگل سے یہاں پہ سمجھا دی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اس میں ٹروسیکر بھائی یہ دوسری جو انہوں نے قرآن کی آیت کوٹ کی ہے وقالت الاعراب ولی، پھر ان کو آگے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے تو ابھی دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا لیکن وہ اسلمنا ہے. تو اسلمنا کا صیغہ تو آتا ہے مسلمان کے لیے اور آگے ایمان والے کا صیغہ آتا ہے مومن کے لیے. جی تو پھر اس عبارہ سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو مسلمان ہے اس کو کر سکتے ہیں سلام، اور جو مسلمان کو سلام کر سکتے ہیں، لیکن ایسا مسلمان جو کسی دوسرے مسلمان کو کافر ٹھہراتا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے نہیں، یہ دوبارہ یہ یہاں سے جہاں سے انہوں نے یہ آیت پیش کی ہے نا، یہاں سے دوبارہ پڑھیں عبارت. یہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اب یہ غور کریں کہ اب جو شخص خدا اور رسول کے بیان کو نہیں مانتا اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے اور عمدن خدا تعالیٰ کے نشانوں کو رد کرتا ہے اور مجھ کو باوجود سدھا نشانوں کی مفتری ٹھہراتا ہے تو وہ مومن کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اگر مومن ہے تو میں بوجہ اختراع کرنے کے کافر ٹھہرا کیونکہ میں ان کی نظر میں ہاں تو مومن اگلا درجہ چلا گیا ہے نا، مومن سے پچھلا درجہ ہے مسلمان کا. اور وہ آیت انہوں نے جو کوٹ کی ہے وہ آیت دوبارہ پڑھے ادھر سے، آپ کو شاید وہ بات دوبارہ نظر آئے جو مجھے نظر آئی ہے. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ ان میں ایمان آیا کہ نہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، لیکن یہ یوں کہو کہ تم نے اطاعت اختیار کر لی ہے اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ہاں، وہ اطاعت جو ہے نا اردو میں لکھا ہوا، وہ اس کی جگہ ورڈ آیا ہے اسلمنا. ہاں جی، تو اسلمنا کی جو نسبت آتی ہے وہ مسلمان کے ساتھ آتی ہے، مسلم، مسلمون، مسلمین، ہمارا اسلمنا، کام ہے. اسلام، جی جی، یہ سارا سیم ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی نظر میں کافر ہے، لیکن ہمیں ظاہری طور پہ تو نہیں نا پتا کیونکہ دلوں میں کیا ہے، تو ہم نے ان کو مسلمان ہی کہنا ہے. لیکن نہیں، جو اللہ نے بندہ ادھر عراب کو کافر تو نہیں کہا، ہم نے ان کو مسلمان ہی کہنا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان ان میں داخل نہیں ہوا، جن میں ایمان داخل نہ ہوا ہو، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو وہ، تو جن کو ہم مسلمان کہیں گے ان کو تو سلام کر سکتے ہیں. ہاں ان کو ہم سلام کر سکتے ہیں. لیکن جو آگے پھر بات ہو رہی ہے کہ جو انکار کر دیا جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا، اس نے تو ظاہر کر دیا نا، اس نے تو ظاہر کر دیا کہ میں ایمان نہیں لایا یا میں نے انکار کیا اور ان کو مفتری ٹھہرایا. تو پھر وہ اس کے نیچے، اس فتوے کے نیچے آ جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جس نے مسلمان کو کافر کہا اور اس میں وہ کفر نہیں پایا جاتا تو کفر اس پہ لوٹے گا. السلام علیکم. یار اس عبارت کا اس سے کیا لینا دینا جو فتویٰ وہاں پڑھ کر سنایا گیا مربی صاحب کو، اور جو مربی صاحب نے اس کا جواب دیا وہ تو خالص سلام کرنے کے متعلق ہے کہ سلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے جو عبارت پڑھی، یہ تو کفر اور ایمان کے بارے میں ہے. جی تو یہ وہی بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کا فتویٰ ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر سمجھے گا وہ اس پہ کفر لوٹے گا. اور جب آپ حضرت مرزا صاحب کا، حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو مفتری سمجھا، اور جب آپ نے یہ ظاہر بات کر دی تو ہماری نظر میں پھر آپ کافر ہوئے. بات تو اچھا ٹروتھ سیکر صاحب، میرا اسی پر ایک سوال ہے. ایک منٹ ذرا، اللہ اور رسول کے فتوے کے مطابق نتیجہ اس کا کیا ہے؟ سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ اللہ اور رسول کا فتویٰ ہے بھائی. یہ سوال یہ نہیں ہے ٹروتھ سیکر صاحب، سوال یہ ہے پاکستان، میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، میں نے آپ کو پوری وضاحت سے ان کا جواب آپ کے سامنے رکھا ہے. میں اسی لیے کہہ رہا تھا یہ عبارت نہ پڑھو، اس سے یہ عبارت تو 20ویں دفعہ یہاں پڑھی ہے، سوال نمبر 6، اس کا تو لینا دینا ہی کوئی نہیں. سوال یہ تھا سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں کرنا چاہیے. جو مرزا صاحب کو مانتے نہیں ہیں ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، جو ان کے مکفر اور پاکستان کے 26 کروڑ عوام مرزا صاحب کے مکفر اور مکذب ہیں. کم از کم یہاں ٹک ٹاک پر تو کوئی بھی نہیں نا جو مرزا صاحب کو مانتا ہے مسلمانوں میں. آپ جنرلی نہیں کہہ سکتے،
ये आप नहीं कह सकते। कई लोग हैं अच्छा, यहाँ हमें सलाम कर, चलो छोड़ दो बाकियों को, मुझे सलाम करना चाहिए। जिनको आप कहते हैं कि जो कादियानी हो गया जो लोग, अच्छा छोड़ दो, मुझे बताएं, मेरे पर बताएं, मुझे सलाम करना चाहिए, लोग हैं आमिर नजीर को सलाम करना चाहिए, ये सवाल। आपने इनकार किया है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का? आपको नहीं पता? आप बता देना भी। यहाँ सारे बंदे, कोई नहीं जानता मुझे, कोई इनमें से तो उसका हाथ खड़ा करवा दें। अगर आपने इनकार किया है कि नहीं? हेलो, अगर आपको इतना अर्सा हो गया देख रहे हैं इनको, आपको ये इनकार करने वाले लगते हैं, ये मानने वाले। यार अपने नबी की बात मानने में कितनी परेशानी हो रही है। ज़ाहिर रसूल साहब, एक प्रॉब्लम है कि मुझे इंटरप्ट आप करेंगे ना तो मैंने आपको नीचे उतार दिया। सारी दुनिया के मुसलमान मिर्जा साहब का इनकार करते हैं, मिर्जा साहब को काफिर कहते हैं, काजिब कहते हैं, बशमूल ज़िया रसूल अहमद नज़ीर नई मवाद के। एक मिनट, कौन दसो आप जरा खामोश रहें, बीच में इंटरप्ट ना करें। मैंने आपको क्लियर सारी बात समझा दी है। अगर आमिर नज़ीर साहब इनकार करते हैं और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पे को मुकज़्ज़ब ठहराते हैं तो मेरी नज़र में आमिर नज़ीर काफिर है और मुझे इनको सलाम करना नहीं बनता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इतनी सी तो बात है कि जो मरब्बी साहब ने बात कही है उससे आप इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं? मैंने आपके सामने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पूरी इस बारे में हर एंगल से जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो आपके सामने रख दी है और आपको जवाब भी दे दिया है। अब आप आगे चलें, अब नेक्स्ट जो बात है उस पर आ जाएं हम इर्तिदाद पे। एक फिक्रे में बता दें कि भाई टिक टाक पर जितने बंदे बैठे मैंने हैं, आपसे कहने पे अब रिपीट नहीं करना, मैंने बता दिया है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। क्या बता दिए? आपको बता दिया है, अब आगे चलना है आपने कि नहीं? नहीं, हमें तो समझ नहीं आया। अब वकास साहब आपको समझ आ गया? आपको समझ नहीं आया तो फिर मैं रिपीट नहीं कर सकता। आपने कैटेगोरिकली अमर भाई अपने बारे में भी पूछा, उन्होंने बता दिया। आमिर साहब उन्होंने दे दिता है जवाब कि जो भी अच्छा, मेरा एक सवाल है इस पर, जड़ा है वो मुकद्दर समझदा है वो नहीं करना। यानी जो बंदा मिर्जा साहब को नहीं मानता उसको सलाम नहीं करना, ऐसा ही है? हाँ जी जी जी, यही स्टेटमेंट दी है उन्होंने, बिल्कुल। वकास साहब, एपी साहब, इनको करना है कि नहीं करना? इनको करना है। नमस्ते कर लो, शलोम कर लो, जय श्री राम कर लो, हर राधे कर लो। तुसी जो मर्जी करे हो ना तो पूछ लो यार हम तो ना पूछने वाले हैं। इनको सलाम इसलिए करना है कि ये अगर कुरान मजीद पे गौर करके एक बात समझ रहे हैं उस हम तो तहकीक में है जी, बाकी बात इनकी ठीक है, हम तो तहकीक में है, हमारी कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं है, किसी लिहाज से भी फाइनल। मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, मेरी कोई फाइनल तहकीक वाले ना, तहकीक वाले इसमें नहीं आते ना इस फतवे में। मेरी कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं है ना हमेशा। मैं कैसे आपको बोल दूंगा मैं नहीं मानता या मैं मानता हूँ? बशीरुद्दीन महमूद बारे दस दिओ, जेड़ा कहंदा सी नाम ही जिन्हां नहीं सुनिया वो भी काफिर ने। तो देखो खलीफे ये तो फिर तहकीक च ने एक स्टेज अगे ने, वो तो कहते हैं नाम ही जिन्होंने नहीं सुनिया वो भी काफिर ने। मेरी एक बात सुने ज़िया साहब, अब आप इजाफी बातें ना करें, ठीक है? जो सवाल आपने किया था हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हिसाब से। अच्छा, मेरा इसी तहरीर पर जो आपने पढ़ी है इस पर सवाल है, जो आपने इतनी लंबी तहरीर पढ़ी है इसी पर सवाल है, इससे बाहर मैं नहीं जाता। कोई जवाब देगा? क्या सवाल है आपका, बताएं। सवाल मेरा यह है कि मिर्जा साहब के इल्हाम का इनकार करने वाला बंदा वो तो हो गया काफर, ठीक है, और जो बंदा अब्दुल्ला गजनी के इल्हाम का इनकार करता है वो मुसलमान है या काफर है? पता नहीं यार क्या सवाल है। एक इल्हाम हुआ मिर्जा साहब को, एक इल्हाम हुआ अब्दुल्ला गजनी को। अब्दुल्ला गजनी साहब भी 26 साल जिंदा रहे हैं, इल्हाम के बाद मिर्जा साहब भी जिंदा रहे हैं। 23 साल के फार्मूले पर दोनों के इल्हाम सच्चे हैं, ठीक है। अब जो अब्दुल्ला गजनी का इल्हाम का इनकार करता है वो बंदा काफर है या मुसलमान है? सवाल मेरा ये है। हाँ जी, अभी ये जो टॉपिक चल रहा है ना उसका मैंने जवाब दे दिया है। अब ये अब्दुल हक गजनी का वो है कि वो अल्लाह के नबी रसूल थे सच्चे? नहीं, ये तो सवाल इल्हाम पर है, मेरा सवाल इल्हाम पर है। तकफीर तो इल्हाम की होती है ना, इनकार तो इल्हाम का होता है ना, दावे का इनकार नहीं होता, इनकार इल्हाम का होता है। ओ भाई देखें, सबसे पहले ये है कि जब जो नबी और रसूल होता है वो दावा करते हैं, ठीक है, उसको आप मानेंगे तो इसका मतलब है कि आप
देखें सिर्फ नबी और रसूल पे ईमान लाना फर्ज है कुरान के मुताबिक, ठीक है। तो इसलिए हमेशा नबी और रसूल ही दावा करता है कि मुझे अल्लाह ने नबी और रसूल बनाया है, और जो उसका अगर इनकार करेगा और अगर वो नबी सच्चा है पर उस बंदे पे यार जिया साहब ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ म्यूजिक देना अच्छा नहीं तो जवाब मुकम्मल करने दे, वक्त शॉर्ट है यार। एक मिनट छोटा सा मेरा सवाल है यार, छोटा सा सवाल है, छोटी सी बात है, इस सवाल मैं दूध अल्फाज में किया करें। इसका इस टॉपिक से ताल्लुक नहीं है भाई सिद्धा नहीं, बड़ा- भी नबूवत दा दावा करने वाले दी गल है, सीधा दस देना एडा लम्मा आ भी परेशान हो रहे हैं। मुद्दई नबूवत के बारे में अगर है तो ऐसे बात करनी है तो मैंने आपको तार देना है। नहीं उनका अपना एक नहीं अच्छा तो ठीक है साहब, मेरी तरफ तवज्जो करें ना, बात ये आपने है सवाल कि- को बात यह है कि पीर स्काली साहब जो हैं वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह बात करते हैं सब कुछ, लेकिन उनकी भी ब्रॉड पे ये मसला होता है कि अगर मैं जाऊं तो वो मैनेज नहीं कर पाते सही तरह। अच्छा आप इसका बताएं ना, मुझे जवाब देना, मैं दूध साहब यार सीकर साहब, ये जितनी आप ज्यादा बोलेंगे उतना लोग तंग पड़ के आपसे मुखातब होते हैं। मवान साहब मैंने आपको बता दिया है कि ये टॉपिक से रिलेटेड सवाल नहीं है। अभी जिस टॉपिक बात हो रही है उसका जवाब मैंने दे दिया है। अब आगे जो दूसरा टॉपिक इर्तिदाद का था उस पर आना है। मसला तो टोशिकर भाई हुण बन गया है कि आमर नज़ीर साहब के मुताबिक टोशिकर काफिर, टोशिकर के मुताबिक आमर नज़ीर काफिर, ते दोनों जो मुसलमान कौन है सच्चा? बनी इसराइल भाई बात सुने ना, सवाल टॉपिक और रिलेटेड नजदीक हो जाते हैं। मिर्जा साहब पर नाजिर होने वाली वही को उन्होंने कभी वही नबूवत करार दिया, उसका हवाला मुझे दरकार है। हेलो अपने ऊपर नाजिल होने वाली वही को वही नबूवत करार दिया हो, इसका हवाला दरकार है। यार भाई ये एक और वलायत जगह असी दिखा जब मारी देंगे। जा रहे हो, बात जो हो रही है इस टॉपिक पे मैंने बात सामने कर दी है। अब एक दूसरे टॉपिक पे नहीं जाना यहाँ पे। रुत सिकर साहब मिर्जा साहब की वही विलायत थी, हम साबित कर देते हैं, आप दिखा दें मिर्जा साहब ने उसको वही नबूवत कहा हो। जब वही नबूवत ही नहीं है तो नबूवत कहाँ से हो गई? फिर तो वही वलायत बचती है पीछे। वही वलायत जैसी अब्दुल्ला गज़नवी को थी वैसी मिर्जा साहब की है। जैसे मिर्जा साहब की वही का मुनकर काफर है वैसे उनकी वही का मुनकर काफर है। मिर्जा साहब ने अपनी सारी जिंदगी में अपनी वही को कहीं वही नबूवत करार नहीं दिया। नहीं मवान साहब, क्या अब्दुल हक गजनवी जो थे उनकी वही के अल्फाज वही हैं जो मिर्जा साहब की वहियों में थे? उनके इल्हाम के बकायदा अल्फाज खुद मिर्जा साहब ने नकल किए 1891 नहीं, वो में। उनके इल्हाम के अल्फाज वही हैं जो मिर्जा साहब के इल्हामों के हैं? वैसे ही अल्फाज है जैसे मिर्जा साहब के इल्हामों के हैं। बिल्कुल हूबहू वैसे ही हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने नकल किए हैं कि उन्होंने लफ्ज़ी इल्हाम नहीं, जैसे इल्हाम मिर्जा साहब को होते थे बिल्कुल वैसे उन्हीं लफ्जों के साथ अब्दुल्ला गजनवी को इल्हाम हुआ है। अब ये मुझे नहीं पता कि मिर्जा साहब के सारे इल्हामों से मुताबिकत रखता है। देखा ना, या- मौलवी साहब भाग गए हैं। बात असल में नाजरीन कराम ये है, उनको तो वही और अल्फाज में हुई है, मिर्जा साहब को और अल्फाज में हुई है, तो कैसे वो उनकी वही के बारे में ये शर्त रख सकते हैं मिर्जा साहब के? बनी इसराइल साहब आप ये सवाल ज़हन में कोई रखें जवाब और नहीं उनसे मौजूद। मुतालबा रखें कि मिर्जा साहब को वही नबूवत अपनी ऊपर नाज़िल होने यार वही नबूवत कब मैं करार पाई उनसे है? क्या मुतालबा रखूं अब भाई? सुने ना, मेरा मैं आपको एक मुनसब बना रहा हूँ यहाँ पर। देखिए मेरा कि आप इतराज मुझे ही नहीं बताएं है ना। नहीं इतराज की नवाब बात साहब नहीं है, बात मुझे तो सुन लें, बात तो अच्छा, सुन आप लें। कर लें, फिर मैं मैं मिर्जा सवाल कर साहब पे बात तब करूं कि मैं वो जिनकी अतात में जो है मिर्जा साहब की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो सूल पर बात कर रहा हूँ कि जिस बंदे कोई वही नबूवत हो ही ना वो नबी होता है। नहीं वही है नबूवत। देखे वही कोई दलील नहीं है नबी होने की, ये कुरान में कहीं पे भी नहीं है। वही तो हजरत मूसा की वालदा को भी हुई है, तो क्या वो नबी बन गए? और लो नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि मूसा अलैहिस्सलाम की बात वही है ही सुने तो सही ना। आप वही सुने तो शहद सही की ना। मक्खी पे हुई है, तो क्या वो ये शहद सारी की मक्खी बातें जो मेरे इल्म में, ये सारी बातें मेरे इल्म में कि तो नहीं है ना। देखिए जिस चीज अब की मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली वही और उनकी वालदा पर नाज़िल होने वही में फर्क है या नहीं है, ये मेरा सवाल बिल्कुल फर्क है, 100% फर्क है। 100% फर्क है ना। शैतान यही- भी आपको पता है, शैतान भी वही करता है, तो मुझे शैतान क्या पता है, नबी हो बिल्कुल गया? मुझे पता है, बिल्कुल पता है। यही मैंने पूछा है ना कि ये जो वही नबूवत होती है ये मखसूस होती है। बिल्कुल अब हम कहते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम की वही है उसको हम वही वलायत लेते हैं, वही नबूवत सही। लेते ही नहीं है। ये सही। फर्क करते हैं हम। आप पता नहीं किस पैमाने पर करते हैं, हम इस पैमाने पर फर्क करते हैं कि वो वही वलायत थी वो गैर नबी को होती है, सही है। और नबी पर जो वही होती है वो वही नबूवत कहलाती है। ये फर्क है दोनों में। ठीक है। आपकी तवील है। वही है नबूवत शरीयत वाली वही को कहा जाता है, जो नई शरीयत जदीद लो जी, शरीयत लो जी, हाँ लो ये जी। उनकी तावील है ना नईम साहब, फिर उनकी तावील भी तो ले ना।
अगर वो आप अच्छा, इसके बात में से पता चलता बखिया है, देता हूँ। इसलिए ये टॉपिक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये टॉपिक नहीं है। इसके लिए इक़्तिबासात जो हैं उनके सामने आएंगे तो बात भाई ये होगी। नबूवत, अच्छा आपके मुताबिक जो है जो ये इनकार जो है वही नबूवत के इनकार से बंदा काफिर होता है या दूसरी वही से, वही वलायत से? नबी की बात हो रही है जो नबूवत का दावा करता है, वही नबूवत होती है। फिर मिर्जा साहब शरीयत नबी है ना, वही तो नबूवत जिसको वही नबूवत कहते हैं, वो तो साहब शरीयत नबी को होती है आपके मुताबिक। और जो बंदा कहता है कि मैं नबी हूँ लाजमी उसकी वही नबूवत है। की तारीफ दिखाएं हमें कुरान करीम से, भाई ये इनका ये तारीफ आपके सामने आई है ना, कुरान इन्होंने करीम खुद से तारीफ की। दिखाएं ना। वो भी दिखा लेंगे हाँ तारीफ जी, दिखा दिखाएं लेंगे। अभी शाबाश। ये जो अभी बात हुई है ट्रूथ सीकर से, आपको तो दिखा फिर दें, ट्रूथ सीकर मेरे लिए हुज्जत नहीं है। मेरी बात उससे और ये जरा होल्ड रखें, फिर जरा होल्ड रखें, हाँ दिखाएं, शाबाश, होल्ड रखें, जल्दी जरा करें। होल्ड रखें, मुझे ट्रूथ सीकर से मुकम्मल करने दे बात। और वही नबूवत की तारीफ दिखा दे हमें। तो दिखा दूंगा ना। हाँ, दिखाएं ना, कब नहीं, दिखा देंगे? ये कौन सा कीड़ा तुझे तंग कर रहा है जो उतना जल्दी हो गया? मेरी जो गुफ्तगू कीड़ा हो रही है ना। मोहम्मद हसन बटालवी को तंग करता था, जो सनाउल्लाह अमृतसरी को तंग करता था, जो अहमद रजा खान बरेलवी को तंग करता था, जो तुझे तंग करता है, अब उस कीड़े का नाम भी बताऊं मैं? तमीज से पूछा, वो वही है नबूवत की तारीफ बताएं, कहाँ पर लिखी हुई है? उस कीड़े का नाम किरमे खाकी था। हाँ जी, हजरत दाऊद को भी वही कीड़ा था। ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਲਵੇਟੀ ਜਾਓ। ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। सारे गवाह रहे हैं कि बात हो रही थी आपस की। चले, अगर नईम भाई ने उसको कह दिया है कि तुम्हें कौन सा कीड़ा तंग कर रहा है, उसने दूसरे के काबर का नाम लिया। नहीं है, इन्होंने हजरत दाऊद नबी की बात की है। जी जी, वाकई तो- कालू साहब आपने ये हजरत दाऊद नबी की बात की है। जब काबर की तरफ जाएं वही काबर आपका जिक्र करे, फिर आप नबियों पे जाएंगे। नहीं, ये तो बड़ी ये है देखिए, मजाक। क्या बड़ी बड़ी गलत बात है ये। बनी क्या साहिब गलत साहब, बात आपको है? इस बात का पता नहीं है ना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बात ने का भी पता है यही- नहीं है, ऐसी बड़ी यही इशार- गलत यही बात है। इशार कहे हुए हैं, इससे मिलते जुलते इशार बातें तो कहे हुए हैं। मुझे बहुत पता है बातें। हाँ, आपको बताएं भी हैं तो पता है। बेज़रा आपको- खामोशी से मैं सुने। आपको समझाता हूँ ना। आप बनी मुझे साहिब पता है बताया वो है कीड़ा कि जिस वक्त मिर्जा कादयानी से एक मिनट निकला था रुकें, तो 16 दिन उसे नहीं पिछवाड़े साहब, थे एक कौन? मिनट रुकें, एक मिनट रुकें। हाँ, नहीं ईमान को हाँ, नहीं देखा ना, अच्छा, बकवास शुरू होगी। अच्छा नहीं, बनी साहिब साहब- आप देखें ना, बनी गलत साहिब बात साहब, एक मिनट आपने सुन की लें। है। यकूब को कीड़े पड़ गए थे। कीड़े किसको पड़े हुए थे? हज़रत यकूब को। तुम्हारी तफसीरों में लिखा हुआ है, दिखाऊं? बात ये है बनी साहिब साहब कि ये इनकी जो गंदा जहन है ना, हम इनको कहते हैं कि ये आपका जो गंदा जहन रुकें है, जरा ये यार, बात मैं- कर रहे हैं, ये कहाँ तक जा रही है? रुकें ना, ये हमारी फिक्र बात नहीं है, इन लोगों भाई। का कहानी जहन है बोले ऐसे। जी, आप क्या बता रहे हैं, किसको कीड़े पड़ गए थे? जी, हज़रत यकूब को पड़ गया। और हजरत अय्यूब दाऊद को- के बारे में अय्यूब क्या बोला है आपने? हज़रत दाऊद ने भी वही शेर बोले हुए हैं जिस तरह का हज़रत मिर्जा साहब ने बोले हुए। मैं मिर्जा साहब की बात नहीं कर रहा, हजरत दाऊद के बारे में आपने क्या बोला था? जी, हज़रत दाऊद ने भी यही बोला हुआ है कि मैं किरमे खाकी। किरमे खाकी। और किरमे खाकी को आपने क्या बोला कि वो एक कीड़ा है? ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं ना भाई, नहीं, आपने उसको हजरत दाऊद पे मंसूब किया ना। हमने नहीं मंसूब किया, हमने हमने कहा नहीं किया। है कि तुम्हारी बात कहाँ तक जा रही है, ये हम उनको समझा रहे हैं कि तुम्हारा जो नहीं, गंदा जहन है ना, बात आपस में हो रही है। आपस की बात आपस को में नहीं ना हो एक रही। नबी पे- आपस में कहाँ पर हो रही है बात? आपस में हो रही है। जब तक मिर्जा साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो नबी नहीं है। नहीं, उन्होंने मिर्जा साहब के बारे में ऐसी कोई कहा बात है उन्होंने। क्या कहा है? आपके कान बंद थे ना, क्या आपको कहा है? बताएं, नजर क्या नहीं कहा आता। है? छड़ दे यार वकास, जो उन्होंने कहा है वही मैंने उनको कह दिया है। जो उन्होंने कहा है ना, हाँ बनी जी। साहिब साहब, थोड़े से मुझे बात को रिकॉर्डिंग समझा चाहिए थी, करें। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। तल्ला साहब अब दोबारा क्लेम नहीं करेंगे इस बात का कि हमने ये बात क्यों की और वो बात क्यों की है। जो मेरा हमने असल में की है, आप लोगों हमने से- उस वजह से की है, उन्होंने जिस वजह से आपसे की मेरा थी, कोई उसको लेना हमको देना जवाब नहीं है दे कालू साहब, ना आपसे मेरा कोई मसला चलो है, ना ना किसी लेना फिक्र देना से। हो, फिर खामोश हो जाए। मैं आपके जब पास नहीं आपका बैठा कुछ हुआ, लेना देना नहीं है तो आपके फिर मेरे से पास नहीं मुखातब बैठा ना हो। तो मेरे बैठे हुए आप किसी नबी रसूल के बारे में ऐसी ऐसी तो जुबान आपके इस्तेमाल बैठे हुए क्या नबी बात रसूल है की बनी बातें साहिब कर साहब, रहे क्या थे। बात की है? आप बताएं क्या बात की है? ये कह रहे हैं हजरत याकूब को कीड़े पड़ गए। वो हजरत दाऊद की पहले बात हो रही थी। हजरत चले, यकूब हजरत दाऊद की हजरत बात- यकूब अलैहिस्सलाम के बारे में इनकी तफसीर में लिखा हुआ है, ये बताया जा रहा है उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
हाँ जी, ये ना डॉक्टर डेरिंग ने जो कहा है ना, मैं किरम खाकी जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक शेर है, तो उस हिसाब से फिर आगे ये कालू ने कहा है, तो यानी आगाज इसने किया है, तो इस बात को आप दोनों तरफ से खत्म ही समझे। एक अगर करता है दूसरा सब्र कर जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। नहीं वो तो मानते नहीं है ना। एक मिनट रुके यार टूशिकर भाई, एक मिनट रुके, समझाता हूँ, एक मिनट सुन ले। मरियम आती वो मिर्जा साहब को नहीं मानते, क्या कालू साहब जो है हजरत दाऊद को नहीं मानते, हजरत याकूब को नहीं मानते? वो उनको इल्जामी तौर पे बता रहे हैं कि अगर आप एक इल्जामी नबी को तौर पे करेंगे, जिसको आप नबी रसूल मानते हैं उसके बारे में आप ये बात कर रहे हैं इल्जामी तौर पे? क्या बात की है? एक मिनट में आप मरियम मैं आप पूछता हूँ जी, बनी इसराइल भाई कौन सी गलत बात की है मैंने, बताएं यार आप ये जो बातें आप कानून कर थोड़ा रहे से हैं, हाँ, क्या गलत बात की है? सब्र ये से जो बात बातें आप करते हैं। कर रहे हैं हजरत दाऊद के बारे में और हजरत याकूब के बारे में, ये अच्छी हाँ ना। बातें हैं, ठीक दुरुस्त तो बातें ये हैं। लिखा हुआ है उनके बारे में, लिखा हुआ मैं अपनी आपको तरफ से दिखाऊं कर रहा हूँ। फिर? लिखा हुआ दिखाऊं क्या आपको? दिखाना है, क्या दिखाना है आपने आप मुझे? आमिर नजीर साहब आप भी उतरे नीचे, डॉक्टर डेरिंग भाई आप भी नीचे उतरे, मैं इनको दिखाता हूँ, दिखाएं जी, आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ दिखाएं, फिर मुझसे भी देख लेना। आमिर लिखा साहब हुआ आपसे दिखाऊं, मैं रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, दिखाऊं। डॉक्टर डेरिंग साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है, हाँ, नीचे ठीक है, उतरिए जाए। प्लीज, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ जी, दिखाएं दिखाएं। हाँ मैं तुम्हें थोड़ा दिखाता से हूँ सब्र हमारे, तहम्मुल से बात करें एक नहीं दूसरे से। दिखाने नहीं नहीं मैं इसको दिखाता हूँ आपके नहीं नहीं, बहनोई का नाम नहीं ले रहा, नहीं नहीं, इसको दिखाता हूँ, आपको कहे बहनोई का नाम नहीं ले रहा ना। दिखाता हूँ कानून तुम्हारे बड़ों को। इस तरह नहीं बात करते यार अच्छे तरीके से मुखातब करो ना। ना करो मैं यार, करता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, मैं हवाला हाँ अच्छे से ना मेरा छोड़ बेटा, दो अच्छे यार। से मुखातब करो। एक मिनट बनी इसराइल साहब, एक मिनट बात सुने जरा। आप मुझे ये बताएं कि उसने क्या गलत बात की है, पहले ये बताएं। नहीं नहीं कुछ भी नहीं गलत बात की, मैं इबारत तो पेश बोले करता तो हूँ। सही ना, क्या गलत बात की है? नहीं नहीं बिल्कुल, इन्होंने इबारत एक पेश की है ना, मैं भी इबारतें रख देता हूँ बस। हाँ तो सीधी सुन सी लो ना, बात है। बनी इसराइल तुम मैं इबारतें रखूंगा, सिर्फ इबारतें रखूंगा, अपनी कोई बात नहीं करूंगा। बनी इसराइल साहब बात तो सुन लो पहले, ऐसी लड़ने पे आ गए हो। जब एक बंदे ने ज़िया ने कहा कि मैं खाकी हूं, ठीक है, हमने तो कोई उसका गलत मतलब नहीं लिया, वो ज़िया गलत मतलब दे रहा था, तो हमने कहा यही शेर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी कहे हैं। सही बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो अब मानते इसमें- नहीं है ना, वो तो मानते नहीं है। वो मानते नहीं है, कहाँ उन्होंने कहा कि हम हजरत दाऊद को नहीं मानते? उनके अपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये शार कहे हैं, ये वो मानते हैं। देखिए उन्होंने बात उनके लिए की है मुखालफत में जिनको वो नहीं हाँ ना, तो हजरत दाऊद ने भी वही बात की हुई है, क्या करें अब? आपने हजरत दाऊद के बारे में बात की है। हाँ तो हजरत दाऊद ने जो बात की है हमें बतानी नहीं है उनको? हाँ मैं बताता हूँ फिर। हाँ बताएं बताएं, आप आपके नबी के बारे में मैं बताता हूँ। चलो बताएं। हाँ, एक मिनट, ये जो तुम बताने लगे हो, ये किसके किधर से बताने लगे हो? हाँ ये बताने दो। हाँ हाँ आपकी किताबों से बता। हाँ बताओ बताओ, हमारी किताबों से बताओ बताओ। जो लोग ईमान लाए हैं उनकी किताबों से। बिल्कुल। पहले अपना बताओ, तुम हो कौन? अपना बताओ कौन हो तुम? अभी पता चल जाता है मैं कौन। ओ बताओ ना, पहले बताओ कौन हो। चलो बताओ शाबाश, अपना बताओ, क्या है तुम्हारा फिरका, कौन हो तुम? बताता हूँ। हाँ बताओ ना, बताते कब हो, बताओ। फिर कभी तुम्हें बताता हूँ। कोई टेप रिकॉर्डर चलाया हुआ तुमने? बताओ। तुम से बात करो यार, हम तुम लोग के पास आके बैठते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम लोग इस तरह से तो यही बात उसको समझाए ना। भाई तमीज से बात करे कालू। सबको प्यार है हमारे साथ। नहीं हाँ, तो यही बात उनको समझाएं। सिखानी पड़नी है। अच्छा तू मैनू सिखाएगा तमीज है? तेरे वर्गे मैं कईयां सिखाई है। चलो बैठो की चलो हूं ना, दस कौन है अपना कीदा दस? दसना तेन मैं कीदा कुरान तेनों नहीं पता मैं कौन है? तेन दसना कीदा दसना, एक मिनट रुक सबर कर। काश मैंने उतार दिया ताकि लड़ाई झगड़ा ना यार नहीं, इस छोड़ वकास दो को भी मारे यार, ना। छोड़ दे बाप को। इस वकास को भी बदतमीजी करने लग गए यार। देखें ये चले बंदा मैं सबको उतार के ब्रॉड बंद कर देते हैं। छोड़ दो। ये बंदा मैं सबको इसको बार-बार अल्लाह समझा रहा हूँ, हाफिज। बनी इसराइल को मैं बार-बार समझा कल रहा वही हूँ छोड़ कि दो बात तुझे गलत यार। की क्या है। छੱਡ ਦਿਓ छोड़ दो। कैसा बात छੱਡ ਦਿਓ। नहीं यार, ये क्या अहमदी भाइयों ने जबरदस्ती यार, मिर्जा साहब को छोड़ दे। माना हुआ है, ना कोई दलील ना कोई। बुखार नहीं उतर गया यार, पता नहीं की तुम्हारी।
तला साहब मौजूद हैं आप इधर? तला साहब है हो कैमरा ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ तला साहब ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਾਲ ਮਾਰੀ ਯਾਰ। एक सेकंड तला साहेब ओवे तला साहब आवाज आ रही है? बनी साहिल साहब आप मुझे तो समझा दें कि आप नहीं मैं क्या समझाऊंगा समझे? अभी, मैं आपको कुछ नहीं समझाना, आप मैंने मुझे कुछ तो नहीं समझा समझाना, देना। मैंने आपको कुछ नहीं समझाना। मेरी बात सिर्फ तलत साहब से है। मुझे आपकी जमात से ना कोई लेना देना है, ना आपके मिर्जा साहब से कोई लेना देना है। मैं सिर्फ चुप होता हूँ तो सिर्फ तलत साहब की वजह से और नासिर अहमद मुझे साहब बता की तो वजह देना, से, मुझे भी बता दें, मुझे भी बता दें कि क्या है इसमें। हाँ इबारत है ना, इबारत मैं इबारत अब पेश करूंगा। आपने नहीं, इबारत सिर्फ सुनने का, आपने सिर्फ इबारत को सुनने का हौसला रखना है बस, कि ये नहीं, इबारत अब पढ़ी जाएंगी। नहीं बनी साहिल और साहब, तलत साहब को ब्रॉड के ऊपर बिठा के मैं इबारत बढ़ा रहे हो यार, एक बात खत्म हो रही है उसको खत्म होने दो ना, क्यों जल्दी में आग डाल रहे हो? नहीं मैं जल्दी पे नहीं डाल रहा, मैं ब्रॉड ठंडी हो गई, खत्म हो गई बात ना, हम पहले सबसे बात करेंगे, बात खत्म। ये मिसाकी भाई अच्छी बात कर रहे हैं, बात को खत्म करें पिछली बात को। हाँ नहीं मेरी सिर्फ देखें, आपकी बात सुने, पीते हैं, आपको नहीं आइडिया है इस बात का? हमारे ब्रॉड पे या हमारे में से जितने भी भाई ऐसे, अब जब भी कभी कोई ऐसी इबारत या कोई ऐसी बात लगाते हैं तो चूंकि हमें भी पता है कि हमारे भी अहमदी भाई हैं, तो उनका दिल दुखता है इस तरह की जो इबारत या इस तरह की जो बातें हैं उनके बारे में ठट्टा मजाक होता है, तो हम उनको अवॉइड करते हैं, हम उनको कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करें। और ये जो है ना बात सिर्फ सुबह हो रही थी जुबान के discuss, चस्के नहीं होने चाहिए। तो इनको क्या लगता है कि जो अल्लाह के सच्चे नबी रसूल जिनको हम मानते हैं और कुरान उस बात की दलील देता है, हमें तो तावील करने की भी जरूरत नहीं है कि हजरत दाऊद के बारे में, हजरत याकूब के बारे में किसी को डाउट हो। हाँ तो किसी को डाउट नहीं है। मैं बनी साहिल साहब, आप मैं कह रहा हूँ जो भी आप अब भारत की बात कर रहे हैं ना, हाँ जी मैं आपको सुन लेना बनी साहिल साहब, आप बात को समझ क्या मकसद क्या था इबारत पेश करने का? मैं बताता हूँ। हम तो उसका सही मतलब समझते हैं ना, हम तो उसका सही समझ, किरमे खाकी हूँ मैं, ये हम हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का शेर है, उस शेर से जो ये मतलब ये लोग समझते हैं, हम तो वो नहीं समझते, हम तो उसको सही समझते हैं। और इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी ये अशार कहे हैं तो हम भी उसका सही मतलब समझते हैं। हम सिर्फ इनको आईना दिखा रहे हैं कि अगर आप गलत मतलब देखते हैं, सुनते हैं, तो इस तरह के शायद उन्होंने भी कहे हैं। ये बात ही सारी, हमने तो ये नहीं कहा कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इसमें आज भी इनको अच्छा इनको ट्रुथ सीकर भाई, इनको आईना दिखाने से आप अंबिया पर तौहीन करेंगे? नहीं लेकिन तौहीन की वो तो मानते ही नहीं है ना, बात को खत्म होने दें। नहीं मैं बताता हूँ, हमने तौहीन नहीं की, हमने तो अच्छा मतलब ही समझते हैं हम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी जो बात की है हम उसका सही मतलब, ये हजरत याकूब को कीड़े पड़ गए, ये अच्छी बात है, ये इस इबारत को बताने का क्या मकसद है? मैं उसका मैं बताता हूँ। नहीं उन्होंने ये कहा है कि इनकी किताब में लिखा है, ये लोग भी, ये जो ज़िया रसूल और आमिर नज़ीर जो हैं, ये भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं। इन्हीं के काबरीन ने अपनी किताब में यार इनको मुझे क्यों दलील दे रहे हैं इनकी? नहीं आपको तो नहीं दे रहा मैं, तो यार हम तो बैठे हुए हैं ना, जब आपके बैठने पे हम लोग लिहाज करते हैं तो हमारे बैठने पे आप पर भी लाजिम है ना लिहाज करना। नहीं बनी साहिल साहब सुन लें बात। हमने तो उनको कहा है, आमिर नज़ीर साहब को और डॉक्टर डेरिंग को, कि आपकी किताब में आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं और आपके अकाबरीन ने ऐसा लिखा हुआ है, ये कहा है। देखिए उनकी जुर्रत है वो ना माने, कुरान में मौजूद है, उनकी जुर्रत है वो इनकार कर दें, कर ही नहीं सकते। लेकिन हम उनको दिखा रहे हैं ना कि आप इनकार करते हैं। ये जो आमिर नज़ीर और ज़िया रसूल हैं, इनके काबरीन इस तरह की बातें लिखते हैं, तो ये इनकार कर रहे हैं। नहीं क्या असल चीज ये नहीं है, बात ये है कि नईम भाई ने अगर आपसे कोई ऐसा लफ्ज बोला है जो आपको पसंद नहीं है, आप उनके काबरीन तक जाएंगे? नहीं, आपके काबरीन तक जाएंगे, आप फिर सारे नबियों की तरफ जाएंगे, ये है असूल आपका? ऐसे नहीं है, मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं है। हमने तो कहा है, मेरी बात सुनो, हमने तो आपको अगर फर्ज कर लो गाली दे दी, मुझे बात तो करने दें भाई, मुझे बात तो करने दें। आपने एक बात कही
ہم نے کہا، آپ نے صرف یہ کہا کہ کرم خاکی ہوں میں، وہ یہ نہیں، اس سے پہلے بات کرو، کرم خاکی سے پہلے کی بات کرو. کرم خاکی سے بات سٹارٹ ہوئی ہے نا. نہیں نا سٹارٹ، اسی لیے میں کہتا ہوں آپ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں. کیا مطلب کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے؟ کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے؟ اگر آپ جان بوجھ کر اپنے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، تو آپ کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ سب کو پتا ہے کہاں سے بات شروع ہوئی ہے. میں بھی ادھر ہی ہوں، میری بات سنو نا، میرے ساتھ بھی وہی دو کان لگے ہوئے جو آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ہاں تو ضیاء رسول نے کیوں کہا تھا کرم خاکی کا نام کیوں لیا؟ ہاں ضیاء رسول نے کیوں لیا کرم خاکی کا نام؟ اور سوال یہ ہے کہ تم نے کیوں لیا محمد حسین بٹالوی کا اور علماء کا نام؟ وہ علماء تھے، آپ تو ان کو مانتے کچھ نہیں ہو. میں مانوں یا نہ مانوں، تم نے تو جب ان کو مانتے کچھ نہیں تو علماء کہاں سے ہو گئے وہ؟ نہیں بھائی، جب تم ان کو مانتے ہی نہیں ہو تو علماء کہاں سے ہو گئے؟ تمہارے کابرین کہاں سے ہو گئے؟ تم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہو. بات چھوڑ کے آگے گیا کیوں ہے؟ ہاں نا، تو آپ تو مانتے ہی نہیں ان کو، تو آپ کے کابرین کہاں سے ہو گئے؟ وہ ان کو نہیں مانتے، محمد حسین بٹالوی کو، نہ احمد رضا خان بریلوی کو، نہ ثناء اللہ امرتسری کو، کسی کو مانتے ہی نہیں ہے تم. کیا ماننا ہے علماء کو؟ علماء مانتے لوگ نہیں نہ مانتے تم علماء کو. مطلب یہ ہے تم علماء تک گئے کیوں؟ بات اس کیونکہ تم مانتے ہی نہیں ہو علماء کو. وہ مانتے نہیں ہو، تم بھی مرزا قادیانی کو نہیں مانتے. ہم تو مانتے ہیں، ہم تو جانے دے رہے ہیں ان کے لیے. کیا مانتے ہو اس کو؟ ہم ان کو وہی مانتے ہیں جنہوں نے کہا. نہیں مانتے تم. لو تو نہیں، کیا مطلب ہے؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ میں کروں گا نا، میرا فیصلہ تم کرو گے کہ میں علماء کو نہیں مانتا. ہاں تو نہیں مانتے. تمہارا فیصلہ میں کروں گا، تم مرزا قادیانی کو نہیں مانتے. میرا فیصلہ تم پہلے اپنے علماء کو تو مان لو. مطلب کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ تم علماء تک گئے کیوں؟ تو میں علماء تک جاؤں گا کیونکہ وہ مرزا صاحب علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے، ان کی گالیوں کا جواب ان کو ملتا ہے. یہ ہے ان کا اصول کہ اگر آپ ان کے خلاف کوئی بات کہیں گے، یہ آپ کے علماء کو کہیں گے، جواباً آپ مرزا قادیانی کو کہیں گے، یہ نبیوں کو کہیں گے. یہ ہے تو مرزا صاحب علیہ السلام نبی تھے نا، نبی کا موازنہ تو نبی سے ہوگا نا. دجال. ہاں تو کہتے رہو نبیوں، تمام نبیوں کو دجال کہا گیا ہے. کذاب اور دجال تھا. ہاں تو یہ سب نبیوں کو کہا گیا ہے، نبیوں کو یہ کذاب، یہ سب نبیوں کو کہا گیا. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تمام نبیوں کو ان کے منکرین جو تھے وہ دجال اور کذاب بھی کہتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لانتی کذاب اور دجال تھا، تمام نبیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہے؟ مائک لانا، مائک لانا. کون سی آیت چاہیے تمہیں؟ کون سی آیت چاہیے تمہیں بنی اسرائیل صاحب؟ دونوں میں یہ سسٹر کیا نبیوں کو ان کے جو منکرین ہیں وہ کذاب نہیں کہتے رہے؟ دکھا دیں. قرآن قرآن سے ہی کہتا ہو، قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ تمام انبیاء کو کذاب کہتے رہے ہیں. کہاں کہا گیا ہے قرآن میں؟ اچھا تو دجال کس کو کہتے ہیں؟